السلام علیکم، ابھی ہم پڑھیں گے اوویرین کینسرز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اوویرین کینسر کا جو ہمارے پاس ہے ابھی گرینولوسا سیل، مطلب ہم نے ایپیتھیلیل کر لیے تھے، اب ہم جم سیلز کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ جم سیلز کریں گے اور کوڈ اسٹومل ٹیومر کریں گے جو ہمارے باقی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ کچھ ہم نے پہلے کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ہے گرینولوسا سیل ٹیومر، موسٹ کامن ٹائپ آف سیس کوڈ اسٹومل میلیگنینسی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ موسٹ کامن ٹائپ ہوتی ہے گرینولوسا سیل ٹیومر، ارائز فرام گرینولوسا سیلز فوکس ایل2 جین میوٹیشن، یہ ارائز کرتی ہے گرینولوسا سیل سے، اور اس میں جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ فوکس ایل2 کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسٹروجن اور پروجسٹیرون سیکریٹ کرتی ہے۔ اگر ایڈلٹ ٹائپ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، مینوریجیا، اب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ ہوتی ہے، بریسٹ ٹینڈرنیس ہوتی ہے، پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ ہوتی ہے، اور انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا ہوتی ہے، اور انڈومیٹریل کینسر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ Endometrial sampling should be done for all females with granulosa cell tumor. Juvenile subtype present with precocious puberty. یہ precocious puberty کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ملتا ہے ہمیں، کالج چینزر باڈیز ہوتی ہیں، like granulosa cells arranged in clusters surrounding IT with eosinophil secretion resembling the pyramidal follicle۔ اس میں coffee bean nuclei کافی بین نیوکلیائسین آتا ہے، لائک کافی بین نیوکلیائسین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کالج ٹینزر باڈیز میں کافی بین نیوکلائی آتا ہے، یہ گرینولر سیلز میں بھی ملتی ہیں اور برینر میں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ٹیومر مارکر ہیں وہ انہیبن اور AMH ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سالڈ سسٹک ماس، کالج ٹینزر باڈیز، سلکسڈ کارٹون گرل وتھ بریسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پریکوکشیس پیوبرٹی، کارٹون گرل وتھ بریسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پریکوکشیس پیوبرٹی، ٹھیک ہے۔ اور گرینولر سیل ٹیومر جو ہے یہ ایسٹروجن سیکریٹنگ سیس کوڈ ٹیومر ہے، اوریجن گرینولر سیلز آف اوریجن فولیکل ہے، گرینولر سیلز آف اوویرین فولیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو میوٹیشن ہوتی ہے فوکس ایل2 کی میوٹیشن ہوتی ہے، 100% ایڈلٹ ٹائپ فیوریٹ ہے فوکس ایل2 میوٹیشن، یہ تو پوچھا جاتا ہے۔ اور موسٹ کامن سے اسکور اسٹومل میلیگنینسی ہے، اس میں ایسٹروجن پروجسٹیرون دونوں پروڈیوس ہوتے ہیں۔ پھر یہ آگے ڈفرینس بتایا ہوا ہے ایڈلٹ اینڈ جوینائل کا۔ ایڈلٹ ایج جو ہے 90% ہوتی ہے، پری مینوپوزل ایج میں ہوتی ہے، اور جوینائل جو ہے 10% ہوتی ہے، لیس دین 30 ایئرس چلڈرن میں ہوتی ہے۔ مینسٹریل ریگولیٹریز، مینوریجیا، ابنارمل یوٹرائن بلیڈنگ، پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ، بریسٹ ٹینڈرنیس، اور اس میں آئسوسیکسوئل پریکوشیس پیوبرٹی ہوتی ہے، اور اس میں انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا اور انڈومیٹریل کینسر کراتا ہے۔ ٹیومر مارکر کیا ہے اس کے، انہیبن اور AMH، اینٹی ملیریل ہارمون یوز فار ڈائگنوسس فالو اپ، ٹھیک ہے۔ ٹیومر مارکر انہیبن اور AMH ہے۔ ہسٹوپیتھولوجی امیج بیسڈ فیوریٹ ہے، کالج انزر باڈیز ہے اور کافی بین نیوکلائی، ٹھیک ہے۔ ہسٹوپیتھولوجی میں کالج انزر باڈیز، ایکزنر باڈیز اور کافی بین نیوکلائی ملے گا۔ گرینولر سیلز ارینج ان رنگ راؤنڈ eosinophilic fluid look like a primordial follicle. Coffee bean nuclei longitudinal grooves and nucleus image seen in brainer tumor. ایزامنر کنفیوز دیز ٹو، اس میں ہمیں گرینولر سیل ٹیومر میں ہمیں کالج ٹینزر باڈیز اور کافی بین نیوکلائی ملے گی۔ سرجیکل مینجمنٹ میں THBS اور فرٹیلیٹی اسپیرنگ، یونیلیٹر سرپنج اوفلیکٹمی ان ینگ، اس میں TH اور BSO کریں گے، فرٹیلیٹی اسپیرنگ ہے، یونیلیٹر سرپنج اوفلیکٹمی ان ینگ وومن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم TH اور BSO کریں گے، اگر فرٹیلیٹی کی نیڈ ہے تو سرپنج اوفلیکٹمی کریں گے۔ 10 to 20 years سو لانگ فالو اپ ہوتے ہیں، نیبن والو اب اس کا انہیبن کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لائن وائی آنسر ہے گرینولر سیل ٹیومر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ گرینولر سیل ٹیومر از این ایسٹروجن سیکریٹنگ سیس کوڈ اسٹومل ٹیومر ہے، اس میں فوکس ایل2 کی میوٹیشن ہوتی ہے، ایڈلٹ پریزنٹ وتھ مینسٹریل ریگولیٹریز، رسک آف انڈومیٹریل سی یہ ہوتا ہے اس میں، اور جوینائل پریزنٹ وتھ پریکوشیس پیوبرٹی، ٹیومر مارکر انہیبن اور AMH ہے۔ ہسٹوپیتھولوجی شوز کالج انزر باڈیز اور کافی بین نیوکلائی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لائنز ہیں نا، یہ لائن وائی آنسر یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کا BCQs بھی نکل جائے گا اور MCQs بھی نکل جائے گا، ٹھیک ہے، وائی نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ گرینولر سیل جو ہے ایسٹروجن پروڈیوس کرتی ہے، اس کی جو ٹیومر مارکر ہے انہیبن اور AMH ہے، فائبروما نان ہے، سرٹوریلے جو ہے وہ اینڈروجن پروڈیوس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سرٹوریلے سیل ٹیومر پہ۔ سرٹوریلے سیل ٹیومر جو ہے ہمارے پاس یولی بینائن ہوتی ہیں اور یہ اینڈروجن سیکریٹ کرتی ہیں، ایج گروپ 30 to 40 ایئرز ہے، سیمنیفرس ٹیوبیولز لائک بائی سارٹوریا رنکڈ کرسٹلز ہیں، سیمنیفرس ٹیوبیولز ہیں، سارٹوریا رنکڈ سیمنیفرس ٹیوبیولز لائک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈروجن میں کیا ہوتا ہے، سرٹوریلے سیل ٹیومر میں سیمنیفرس لائک
ट्यूब्यूल्स बाय सर्टोरी एंड रिंग क्रिस्टल्स। सर्टोरी और रिंग क्रिस्टल्स में होता है इंक्रीज एंड्रोजन काजेस ट्रिज्म collateral enlargement trophy deepening of Y से। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका collateral enlargement होती है, ब्रेस्ट सेमिनिफेरस ब्रिज की तरह होती है, आयरन की क्रिस्टल्स होती है। अलेट ट्यूमर में क्या होता है, विरिलाइजेशन होती है, collateral enlargement होगी, ब्रेस्ट एट्रोफी होगी, deepening of Y's होगी। ठीक है, ओवेरियन एडिनल ट्यूमर cause rapid onset हिस्ट्रिज्म होगा, most common cause of हिस्ट्रिज्म PCOS adult onset insidious। ठीक है, पीसीओ में होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सर्टोरी रेड सेल ट्यूमर, एंडोब्लास्टोमा, टेस्टिकल ट्यूमर ऑफ ओवरी, सिस्कोड स्टोमल ट्यूमर, नेचुरली बेनाइन एंड रेड 30 to 40 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। हार्मोन सीक्रेट एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीज एस्ट्रोजन। सर्टोरी एंड्रोजन ट्यूमर जो होती है वो हमारे पास 30 to 40 ईयर्स में होती है और ये हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करती है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, हिस्ट्रिज्म विरिलाइजेशन, परमानेंट चेंजेस, हिस्ट्रिज्म विरिलाइजेशन, क्लाइटोमेगेलोल होगी, ब्रेस्ट एट्रोफी होगी और डीपनिंग ऑफ आइस होगी इसमें। ठीक है, और एग्जामिनर ट्रेप ओवेरियन एडिनल ट्यूमर, रैपिड ऑन हिस्ट्रिज्म एंड विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन होगा, मोस्ट कॉमन हिस्ट्रिज्म जो है ज़्यादातर वो हमें मिलती है पीसीओ में, मोस्ट कॉमन है। हिस्टोपैथोलॉजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स हमें मिलेंगे, रिंग क्रिस्टल्स मिलेंगे, सर्टोरी सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइक सर्टोरी सेल्स और रिंग क्रिस्टल्स। और ट्यूमर मार्कर हमें नो स्पेरिमेंटस मैनेजमेंट यूनिलेटरल सर्पेंजोफ्रेक्टमी एफ यंग इनफर्टिलिटी डिजायर THNB ट्रीटमेंट सर्पेंजोफ्रेक्टमी है। नहीं तो THBS तो करेंगे दोनों में, ग्रेन्सा सेल ट्यूमर में और इसमें दोनों में हम जो है ना दोनों की जो है डिफिनेटिव ट्रीटमेंट THOBS है। बट हम सल्पेंजोफ्रेक्टमी करेंगे, बट हम क्या करेंगे, सल्पेंजोफ्रेक्टमी करेंगे। ठीक है, अगर फर्टिलिटी की डिज़ायर है तो ग्रेनुलोसा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, 40 to 50 ईयर्स में होती है। और सर्टोरी जो लेट सेल सर्टोरी लेट सेल जो है एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये आ गया लाइन बाबा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो नहीं रट्टा लगा लेना फिर भी अच्छा है ये। सर्टोरी लेट सेल ट्यूमर इज अ रेयर बेनाइन सेक्स कोड स्टोमल ट्यूमर होती है, 30 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में होती है। ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, इसमें एस्ट्रोजन रियलाइजेशन होता है। शो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, रिंग क्रिस्टल्स, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शो करती हैं और रिंग क्रिस्टल्स होती है। ठीक है, और हमारे पास आ जाते हैं ये एपिथेलियल जम्स स्कोर ट्यूमर। ठीक है, ये टाइप्स बताइए। ये एपिथेलियल सीरियस मेसिनस ब्रेनर एंडोमेटाइडल कैरियर है, जर्म सेल डिस्जर्मिनोमा योक्सेक एम्ब्रियोनल कोरियोडर्माइड और सेस कोलेस्ट्रोमल ट्यूमर है, ग्रेनुलोसा फाइब्रोमा सर्टोरी लेट सेल ट्यूमर है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, बेनाइन यूनिलेटर ट्यूमर है, क्लस्टर और स्पाइनल शेप सेल्स होते हैं, बेनाइन यूनिलेटर होती है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं नीचे फाइब्रोमा पे। फाइब्रोमा ये भी बेनाइन है, यूनिलेटर स्पाइनल शेप सेल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, और मैगीज मैगीज इसमें एसोसिएटेड विद मैगी सिंड्रोम, फाइब्रोमाइसाइटिस, प्लेरिफिजन है, नेचर बेनाइन है, यूनिलेटर है। और स्टोमा परिविटीज एंड पेरिमेनोपॉजल है, हार्मोन नॉन हार्मोन सिक्रेशन अनलाइक रिनोजाइन सर्टोरिलेट सेल। और एंड फाइब्रोमाइसाइटिस राइट साइडेड प्लेरिफिजन। ठीक है, ये पॉइंट आफ्टर ट्यूमर रिमूवल बोथ एसाइटिस एंड प्लेरिफिजन resolve completely, so it is not malignant. Tumor removal both ascites and pillary fusion resolve complete, so it's not malignant mechanism transition from tumor surface through histopathology clusters और spinal shape मिलते हैं fibroblast don't confuse malignant ovarian tumor with ascites fibroma benign C125 में myoid increase resolve after surgery unilateral sulfingoflectomy or cystectomy pillary fusion resolve after surgery। ठीक है, pillary fusion resolve करती है आफ्टर सर्जरी। ग्रेनुलोसा वही 40 to 50 है, फाइब्रोमा एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, ओवेरियन फाइब्रोमा बेनाइन यूनिलेटरल ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एसोसिएटेड विद मेकी सिंड्रोम, ट्राइड ऑफ फाइब्रोमाइसाइटिस प्लेरिफिजन विच रिजोल्व आफ्टर रिमूवल। ठीक है, एपिथेलियल में 5 टाइप्स हैं, जर्मचेनियल में 5 में से, स्कॉट कोडल में 3 टाइप्स हैं। अब हम आ जाते हैं क्योकन बर्ग ट्यूमर पे। मेटास्टिक ट्यूमर ऑफ ओवरी सेकेंडरी ओवेरियन ट्यूमर है, मेटास्टिक स्प्लिट फ्रॉम गैस्ट्रिक कैंसर। इसका एवरेज होता है गैस्ट्रिक कैंसर से होता है और दूसरा ब्रेस्ट से होता है। ब्रेस्ट से कैंसर स्प्रेड टू द ओवरीज व रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक्स, ये अपनी मतलब क्योंकि ट्यूमर जो है ना या तो ये गैस्ट्रिक की होती है या तो ब्रेस्ट की होती है और ये जो है ना स्प्रेड करती है। ट्यूमर आर ऑफन बायलेटरल, ये बायलेटरल होती है, कैप्सूल इसका इंटेक होता है। ठीक है, और इसमें स्टेगनेटेड सेल होते हैं। स्टमक कैंसर में टू द बोथ ओवरीज
Stomach cancer means to both ovaries, bilateral solid ovaries with intake capillary. Stomach cancer means to both ovaries. Stomach cancer जो है means करती है both ovaries को, bilateral solid ovaries with intake capsule. Stomach cancer मिलेंगे, ठीक है। और means to the ovary, not primary ovarian. Gastric cancer है hereditary spread है, metastatic tumor to ovary, not primary ovarian cancer. Definition में क्या है? मेटास्टेटिक ट्यूमर तो ओवरी नॉट प्राइमरी ओवेरियन कैंसर। मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है वो ओवरी की है, नॉट प्राइमरी ओवेरियन कैंसर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी गैस्ट्रिक है एंड सेकंड मोस्ट ब्रेस्ट है, कोलोन, अपेंडिक्स, पेनक्रियास से अदर जो है। उसके बाद हम आ जाते हैं की फीचर्स एग्जामिन आस्क बायलेटरल इन मोस्ट केसेस प्राइमरी ओवेरियन कैन आल्सो बी बायलेटरल बट इज मोर कॉमन। कैप्सुलस का इंटेक्ट होता है, सॉलिड फॉर्म ओवरीज होते हैं और स्प्रेड टू ग्रेट लिम्फेटिक या स्टमक, ठीक है। मेसेंचियल साइटोप्लाज्म में स्टिमुलेटिंग सेल, मेसेंचियल साइटोप्लाज्म purchase nucleus to one side, local stimulating cells. Female present when female with bilateral ovarian mass gastric symptoms often present with ovarian mass before primary detecting. Kukenberg and primary epithelial से bilateral most common can be unilateral Kukenberg जो है bilateral है most common। Kukenberg जो है bilateral most common है। Kukenberg जो है bilateral most common है। Kukenberg bilateral है most common can be यूनिलेटरल इनटेक होता है, कैप्सूल रप्चर होता है, रिटेन ओवेरियन शेप डिस्टॉर्टेड होती है, स्टिग्नेट सेल्स होते हैं, सीरियस और मिसीनेस होती है इसमें, और स्टमक वेरिस्ट होती है, ओवरी सेल्फ होती है। क्योंकि मेटास्टेटिक ओवेरियन ट्यूमर मोस्ट कॉमन फ्रॉम गैस्ट्रिक कैंसर वेरिएट होंगे दैट इज बायलेटरल विद इनटेक कैप्सूल शोज स्टिग्नेट सेल्स। सही है, नीचे आ जाए। और मिडिला ट्रीटमेंट, अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट पे। मेडिसिन मिडलाइन इंसिजन देंगे, साइटिस फ्लूइड और पेट्रोन फास्ट साइटोलॉजी, ठीक है। और फ्लूइड भेजेंगे साइटोलॉजी के लिए, असेसमेंट ऑफ पेलिकन अब्डोमिनल आर्गन करेंगे और DHBSO करेंगे, फ्राकोलिकोमेंटेक्टमी करेंगे, पेरिटोनियल बिopसी करेंगे, पेल्विक पेराइरोटिक लिम्फ नोड सैंपलिंग भेजेंगे। वाहा यील्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल स्टिंग प्रोसेस फॉर एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर गोल 7 स्टेम्स रिमेंबर एज मार्टोप, ठीक है। मिडलाइन इंसिजन देंगे, वर्टिकल मिडलाइन फ्रॉम द डिफिस्टरम टू प्यूबिस गिव्स फुल एक्सेस टू एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद एसाइटिस फ्लूइड, peritoneal wash, collection fluid before touching tumor. If no ascites, do peritoneal wash with saline from 4 quadrants, ठीक है। यहाँ से हम पेरिटोनियल फ्लूइड देंगे, साइटोलॉजी के लिए भेजेंगे, एसाइटिस फ्लूइड साइटोलॉजी के लिए भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम असेस करेंगे, इंस्पेक्ट ऑल पेल्विक अब्डोमिनल ऑर्गन, लुक फॉर इम्प्लांट और डायफ्राम, liver bile, peritoneum, THBS और total abdominal hysterectomy, bilateral saprophyrectomy, remove uterus tubes, both ovaries पे THBS करेंगे, and फ्राकोलिकोमेंटेक्टमी करेंगे, removement of bellow transverse colon, common meds, peritoneal biopsy, multiple biopsies from pelvic peritoneum, paracolic gutter, diaphragm, pelvic and para-aortic lymph node sampling because ovarian lymphatic drain here। ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट नोट है, ऑप्टिमल डीबल्किंग इन एडवांस स्टेजेस, रिमूव ऑल ट्यूमर लेस देन 1 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है। अगर रिमूव करेंगे हम ट्यूमर अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, रेजिडुअल ट्यूमर लेस देन 1 सेंटीमीटर है, सर्वाइवल प्लस कीमो रिस्पॉन्स, ठीक है। लाइन बाय आंसर सर्जिकल स्टेजिंग ऑफ द ओवेरियन कैंसर इंक्लूड बिनाइन इंसिजन, पेरिटोनियल साइटोलॉजी, THBSO करेंगे, ओमेंटेक्टमी करेंगे, पेरिटोनियल बायोप्सीज करेंगे, लिम्फ नोड सैंपलिंग करेंगे, इन एडवांस स्टेज ऑप्टिमल डीपल्पिंग इज डन, ठीक है। आ जाते हैं फिर हम करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी। एपिथेलियल में हम पेसिलिटेक्सेल और कार्बोप्लेटिन से स्प्लिटिंग देंगे, सेफ्टी स्टेज 1A 1B। उसके बाद जम सेल ट्यूमर है, जम सेल टेप बीप से याद रखा जाता है, बीप बीप में ब्लियोमाइसिनेटिव साइड सिस्प्लेटिन, ठीक है। और ये सब में देते हैं, बट हम डिस्टर्मिनोमा की स्टेज 1 में और मेचोटेटोमा स्टेज 1 में नहीं देते। उसके बाद ऐसे साइटोलॉजी, स्टोमल ट्यूमर सर्जरी सफिशिएंट है, कीमोथेरेपी नीड ओनली स्टेज 3 एंड 4। और से स्कॉड स्टोमल ट्यूमर में सर्जरी करते हैं और कीमोथेरेपी स्टेज 3 और 4 में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और ये एपिथेलियल ट्यूमर पर पेसिटेशियल कार्बोप्लेटिन देते हैं और 1 और B में नहीं करते, 1 और B में सर्जरी करते हैं। और जर्म सेल स्टोमल ट्यूमर का जो है बी पे बिलियोइटॉक्साइड सिस्प्लेटिन और डिस्टर्मिनोमा 1 में नहीं करते, सर्जरी में करते हैं। मेचोटेटोमा स्टेज 1 एंड ग्रेड में नहीं करते। उसके बाद से स्कॉड स्टोमल ट्यूमर है, सर्जरी सफिशिएंट फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज कीमोनोइड ओनली स्टेज 3 एंड 4। एपिथेलियल फिर हमारे पास फैसिलिटीज है, कार्बोप्लेटेड है, ऑल स्टेजेस स्टेज 1A 1B एंड टू गिव ऑल स्टेजेस स्टेज 1A एंड 1B।
अर्ली लो ग्रेड, ठीक है। फिर जर्म सेल ट्यूमर है, बीपीआर स्टेजेस में देंगे, सेफ डिस्टर्मिनोमा 1 एंड इमेच्योर 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है एपिथेलियल इफ नीडेड ओनली स्टेज 3 एंड 4, 1 2 सर्जरी, 1 और 2 में सर्जरी करेंगे और 3 और 4 में देंगे, ठीक है। और कैंसर गैस फैसिलिटेरियल, फिर ये नीचे है हमारे पास एपिथेलियल ओरियन कैंसर गैस फैसिलिटेरियल कार्बोप्लेजम सेल वीप एनसेस कोलेस्ट्रोमल ट्यूमर सर्जरी ओनली ओवेरियन ट्यूमर आर आल्सो रेडियो रेजिस्टेंट एक्सेप्ट डिसजर्मिनोमा जो है ना वो रेडियो सेंसिटिव है। फिर हमारे पास सिस्ट है, फॉलिकुलर मोस्ट कॉमन होती है और ये खुद ब खुद रिजोल्व हो जाती है। फिर कॉर्पस ल्यूटेल होती है, मोस्ट कॉमन रप्चर हो जाती है। फिर लिका ल्यूटेल सिस्ट है, ये भी टाइट सीरीज में बढ़ती है, इसमें मोलर और टेरेंज में आती है सिस्ट है। फिर हमारे पास फॉलिकुलर साइज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, दीज आर फंक्शन सिस्ट विच मीन द रिजोल्व देमसेल्व्स। Follicular system most common cyst of the ovary, follicle fail to ovulate, keep growing, size greater than 3 सेंटीमीटर होती है, हार्मोन एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, प्रेजेंटेशन एसिम्प्टोमेटिक और डिले होती है, प्रोग्नोसिस रिजल्ट बाय सेकंड। फिर हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट मोस्ट कॉमन जो रप्चर होती है, कॉर्पस ल्यूटियल फिल्ड विद ब्लड इंस्टेड ऑफ रिग्रेसिंग प्रेजेंटेशन ऑफ पेन एक्टोपिक हेमोपेरिटोनियम रिस्क और रप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ट्रॉमा, प्रोग्नोसिस रिजल्ट इन 4 to 6 weeks में ये जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। फिर डिकॉलिटल है, सेमिटाइसेजी बढ़ती है, मोलर मोस्ट कॉमन है, ट्विन जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ती है, कोरियो में बायलेटरल मल्टीपल सिस्ट हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज और ये बायलेटरल है मल्टीपल सिस्ट होती है, हाइपर स्टिमुलेटेड ओवरीज रिजोल्व आफ्टर एससीजी लेवल फॉल, ये रिजोल्व हो जाती है जब एससीजी लेवल का फॉल हो जाता है। फिर नेचर फंक्शन रिजोल्व हो जाती है और ये परसिस्ट करती हैं, ग्रो करती हैं और फंक्शन जो होती है रिप्रोडक्टिव एज में होगी, न्यूप्लास्टिक एनी एज में होगी और इसमें मार्कर नॉर्मल रहेंगे, इसमें मार्कर नेम होंगे और वेट वाचफुल वेट एंड सर्जरी करेंगे। फिर हमारे पास लाइन आंसर नॉन प्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट और फंक्शन सिस्ट, नॉन प्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट जो है वो फंक्शन है, मोस्ट कॉमन फॉलिकुलर सिस्ट है, मोस्ट कॉमन टू रप्चर इज कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है, नॉन प्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट और फंक्शनल, नॉन प्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट जो है वो फंक्शनल है और ये मोस्ट नॉन प्लास्टिक सिस्ट फंक्शन मोस्ट फॉलिकुलर सिस्ट मोस्ट कॉमन टू रप्चर इज क्रिप्टल है का डी टू हायर एचसीजी लेवल और प्रेगनेंसी और रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और जब मतलब अगर हम सिस्ट की साइज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर होगी तो सर्जरी करेंगे, सिस्ट पोस्ट मेनोपॉजल होगी तो हम C125 देखेंगे, अगर C125 ग्रेटर देन 35 है तो सर्जरी करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रीपुबर्टल एज में अभी जर्म सेल ट्यूमर है, जर्म सेल ट्यूमर में LDH अल्फा ग्लूटोप्रोटीन और HCG करेंगे, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर में LDH अल्फा ग्लूटोप्रोटीन और HCG नॉट सिग्निफिकेंट सिम्टोमेटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सर्जरी करेंगे, सिम्टोमेटिक मस्ट बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, asymptomatic small, no treatment, asymptomatic greater than 10 सेंटीमीटर फाउंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वेच एंड वाट करेंगे, फाउंड इन सेकंड ट्राइमेस्टर, रिमूव 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी, रिमूव करेंगे 6 वीक्स के बाद या LCS करेंगे, ठीक है। और फिर दोबारा दे दिया है साइज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है तो सर्जरी करेंगे। फिर से जो चेक करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल फंक्शन सिस्ट और एरिया हाई सस्पिशियस और मैग्नेट होती है और सी है जो 125 फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस में आंसू बढ़ता है। फिर चेक ट्यूमर मार्कर और जम से ट्यूमर DH अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा HCG करेंगे और C125 की सिग्निफिकेंस नहीं है। जम से ट्यूमर ऑलमोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन चिल्ड्रेन, जम से ट्यूमर जो है तो मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है चिल्ड्रेन में, सिम्टोमेटिक सिस्ट इन प्रेगनेंसी, सर्जरी रिगार्डलेस ऑफ ट्राइमेस्टर, सिस्टोमेटिक सिस्ट इन प्रेगनेंसी, सर्जरी रिगार्डलेस ऑफ ट्राइमेस्टर, सही है। सिस्टोमेटिक है तो सर्जरी करेंगे भले कोई भी ट्राइमेस्टर हो। फिर टॉर्जन रप्चर पेन इमरजेंसी रिस्क मदर फीटस टॉर्जन है तो हम सर्जरी करेंगे। सिम्टोमेटिक समाल सिस्टम प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, रिजोल्व हो जाती है। सिम्टोमेटिक ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर वॉच एडमिट करेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी करेंगे, फाउंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर रिमूव 6 वीक्स फॉर डिलीवरी, एक्सेप्ट रिमूव ड्यूरिंग LCS। बस ये फिर ट्रिक्स दी हैं। अगर आपकी 7 सेंटीमीटर है तो आप कट करेंगे, पोस्ट मेनोपॉज है ग्रेटर देन C125 ग्रेटर देन 35 है तो मतलब कट मतलब सर्जरी, ठीक है। प्रेगनेंसी है सिम्टोमेटिक है कर करेंगे, सिम्टोमेटिक है बिग है सेकंड ट्राइमेस्टर और पोस्ट डिलीवरी है सर्जरी, ठीक है। फिर ये आ गया है वन लाइन आंसर वाइवा ग्रेटर देन सेम नीड सर्जरी पोस्ट मेनोपॉजल ग्रेटर देन 35 C125 सर्जरी, प्रेगनेंसी सिम्टोमेटिक नीड सर्जरी है, सिम्टोमेटिक लार्ज चेस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर और पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। टाइप फॉलिकुलर कॉर्पस ल्यूटेल थीका, डेफिनेशन ग्रेटर देन 60
3 सेंटीमीटर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन साइज एज प्रेगनेंसी। अच्छा, फिर अब हम बीसीक्यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर में मोस्ट कॉमन जर्म सेल पूछ रहे हैं, एपिथेलियल नहीं पूछे। एपिथेलियल में सीरियस है। और जर्म सेल में कौन सी है? मैच्योर सिस्टिक टेरोटोमा है। ट्यूमर मार्कर फारियोक्सिक ट्यूमर इज अल्फा वीटो प्रोटीन है। कॉफी बीन ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर और कॉफी नोकुलाई तो दूसरा कौन सा बढ़ता है, किस में बढ़ता है? ब्रेन ट्यूमर में भी बढ़ता है। लेकिन अगर दोनों को आशन में है तो फिर हम ग्रेनुलोसा सेल को टिक करेंगे। फिर मेगी सिंड्रोम किस में होता है? फाइब्रोमा में होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मिलेनियम ट्रांसफॉर्मेशन इन डर्माइड ओकेंटिन्स की प्रोटूबरेंस से वहां से होती है डर्माइड में। और 25 ईयर फीमेल विद रैपिड ऑनसेट हिस्ट्री क्लाइटोमेगरी सर्टोरी सेल ट्यूमर है। स्टेगनेंट सेल हमें किसमें मिलते हैं? क्यूकनबर्ग ट्यूमर में। मोस्ट कॉमन प्राइमरी वर्किंग ट्यूबर स्टमक के फॉक्स एल टू जीन से ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है। मैनेजमेंट ऑफ डर्माइड 22 ईयर्स अनमेरिड गर्ल। डर्माइड सिस्ट या अनमेरिड गर्ल में सिस्टेक्टमी करेंगे, सही है। उसके बाद नीचे आ जाता है हम और सिस्ट विद एकोजेनिक नोड्यूल विद एकॉस्टिक शैडो डायग्नोसिस डर्माइड सिस्ट। एकॉस्टिक शैडो डर्माइड सिस्ट में हमें मिलेगा शानवत में इस वक्त पोस्टर एकॉस्टिक शैडो पोस्टर वाल नॉट विजुअलाइज एकॉस्टिक शैडो है। ये टिपाइस ऑफ साइन है। मैनिपुलर ओवियन मास ट्यूमर मार्कर ने बिन रेज ने बिन एनएमएच बढ़ता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में एनएबिन और एमएच बढ़ेगा और इसमें कॉल एक्सटेंसर बॉडीज होंगी, कॉफी पेनिकुलर बॉडीज भी होंगी और ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एडल्ट और जुवेनाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बायोलेटर सोलिड ट्यूमर एंटी कैप्सूल है। पेशेंट विद गैस्ट्रिक कैंसर है। शो सिग्नेटरिंग सेल्स है। ये कॉन्कैम्बक ट्यूमर है, ठीक है। साइट इज राइट पेरिफेरल, ये फाइब्रोमा मेगीज है। रिकार्ड डर्माइड। अब हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है। रिकार्ड डर्माइड मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी है। डर्माइड जो है मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी है, ये ट्रू है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर टू अंडरगो टोचन डर्माइड सिस्ट ट्रू है। ट्यूमर मार्कर इज अल्फा फीटोप्रोटीन, ये फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, ये फॉल्स है। अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं है ट्यूमर डर्माइड सिस्ट में, कोई ट्यूमर मार्कर नहीं होते, ठीक है। इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रू है। और रिगार्डिंग ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर सीक्रेट, हाँ ये सच है। ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। इसमें जुवेनाइल टाइप होती है जो प्रिकोशियस को प्रिपेयर कराती है, ये भी सही है। और ट्यूमर मार्कर इसका CA-125 है, ये फॉल्स है क्योंकि इसका सी ट्यूमर मार्कर जो होता है वो एनेबिन होता है और एमएच होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक ठीक है ये, क्योंकि ये हाइपरप्लेजिया कराता है एस्ट्रोजन की वजह से और एंडोमेट्रियल से ये कराता है, तो इसमें हम लेते हैं। रिगार्डिंग ट्यूब कन्वेक्ट ट्यूमर प्राइमरी ओवेरियन ट्यूमर है, नहीं ये गैस्ट्रिक से निकलता है, ब्लड से निकलता है और ठीक है। इसमें रेटोग्रेट लिम्फेटिक्स होता है, ये सही है। और यूनिलेटर होता है, नो ये बायलेटर होता है। एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, यस ट्रू है। स्टेजिंग ओवेरियन कैंसर प्रीफरेंशियल फॉल्स है। इसमें हम मिडलाइन इंसिजन देते हैं, वॉश मोलते हैं, एंफ्राकोलिकोमेटेक्टमी करते हैं, पेरिक पेराकोलिक लिम्फ नोड सैंपलिंग करते हैं, ये ट्रू है। रिगार्डिंग फाइब्रोमा बेनाइन ट्यूमर सीक्रेट एस्ट्रोजन, फाइब्रोमा बेनाइन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती। इसमें स्पाइनल सेल्स होते हैं, ट्रू है। और इसमें जो है मेगी सिंड्रोम होता है, इट इज जो इन फॉल्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का।